स्टार्ट करिए। हाँ जी। PSSM ਗਲੋਬਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸੰਗਮ ਦੇ ਇਹ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਧਿਆਨ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਵਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮਰੰਦਰ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਰੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤਾਲੂਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਊਰਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਸਮਿਕ એનર્ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਊਰਜਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਊਰਜਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 3 ਲੌਕ ਲਾਉਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸੋਫਾ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਸੋਫਾ ਤੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਸੁੱਖ ਆਸਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਸਨ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਸਰਾਣਾ ਕੁਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੁੱਖ ਆਸਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੱਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਨਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ 1-2 ਘੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ। ਬੈੱਡ ਤੇ, ਸੋਫਾ ਤੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਨੀਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਆਸਨ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਓ
ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਚਾਅ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਢਿੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਗਾ ਓਨੇ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ, ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਉਸ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮਾਹਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਆਓ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਹਿਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਵਾਸ। वॉल्यूम आ रही है जी? म्यूजिक चलो। वॉल्यूम आ रही है आपको? नहीं आ रही है राधना जी, नहीं आ रही और। अपने हेडफोन रिमूव करो राधना जी।
My dear friends, my dear masters, and my dear gods, మిత్రులారా, ధ్యానులారా, భగవంతులారా, మనమందరము ఈరోజు ధ్యానములో నిమగ్నము కావడానికి
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਸਾਡੇ ਕਣ ਕਣ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ। लास्ट 1 मिनट अपने श्वासां नाल रहो। लास्ट 30 सेकंड। 20 seconds। 10 seconds। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हौली हौली अपने हत्थां नूं खोल के अपनी अखां ते रखो 5 सेकंड ਲਈ। 5 4 3 2 1 0।
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ। ਧਿਆਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਬਣੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਪਰਮ ਰਿਸ਼ੀ ਪਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪੁੱਤਰੀ ਪਰੀ ਪਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਪਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਸਟਰ ਬਣੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਬਣੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ, ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰੀ ਪਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਬਣੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਬਣੋ ਦੀ ਇਹ ਕੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਜਿਨੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਪਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਧਿਆय ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਬਣੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, 3-4 ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਥ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਨਾਪਾਨਸਤੀ ਧਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਬਣੋ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਬਣੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਬਣੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਬਣੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਮਾਸਟਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਜੋ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਪਰੀ ਪਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰੀ ਮੈਮ, you have joined, you have given us time, so we are very blessed. Please share your wisdom and share your message for this Master Bano 2 Punjabi program. यस पहले जैसी मैम नमस्कार,
नमस्कार। इतने बहुत दिन हो गए आपको देख के, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वापस हम पंजाब आ गए और पंजाब में मास्टर बनो का प्रोग्राम शुरुआत हो रहा है। कंग्रेचुलेशन सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, सभी ऑर्गेनाइजर्स के लिए कि ये आपने ये इनिशिएटिव लिया है कि एक 40 डेज का यज्ञ फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि ये 40 दिन, ये नेक्स्ट 40 दिन बहुत ही अद्भुत दिन होंगे आपके लाइफ में। बहुत सारे जो सवाल थे अभी तक, उनके सारे जवाब मिल जाएंगे इन 40 दिन में। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं आज आपके साथ फर्स्ट डे पे जुड़ी हूँ। यहाँ पे कितने लोग नए हैं जो पीएसएसएम से जुड़े हैं या इस ध्यान के साथ जुड़े हैं? आप हाथ रेस कर सकते हो। या यस, राज सिंह नए हैं, वेरी गुड। दिव्यजोत कौर, ओके, वेरी गुड। तो वेलकम। गुरलिन नए हैं, वंडरफुल। वरिंदर, यस, वंडरफुल। तो आप सभी को वेलकम पीएसएसएम में। और आप ये अगर ये क्लास में अगर ये पहली 40 डे का है तो इसमें सक्सेस होने के लिए थोड़े टिप्स बताती हूँ, क्योंकि 40 डेज कमिटमेंट मतलब ये सिर्फ ध्यान के लिए नहीं है, हमारे हर वो हैबिट तोड़ने के लिए जो कि हमको पता है कि वो सही नहीं है पर हम तोड़ नहीं पा रहे, उस विल पावर को बढ़ाने के लिए। और अगर कोई आपका कोई दोस्त हो या कोई फ्रेंड हो, उनको भी लेके आए कि कोई अकाउंटेबल हो आपके साथ, कि आप साथ में कर सके ये 40 दिन। तो डेफिनेटली शेयर कीजिए सभी के साथ, क्योंकि ये एक फ्री प्रोग्राम है जो सारे मास्टर्स वॉलेंटरी सर्विस के साथ अपना टाइम देके ये प्रोग्राम बनाया। तो इसको हर कोई यूटिलाइज करना चाहिए, इसको हर कोई इसका अपॉर्चुनिटी इसको हर कोई यूज करना है। और सेजल सेजल, डॉक्टर सोनिया, कनिका, वाओ, वेलकम वेलकम गाइस। सारे पीएसएसएम और पीएसएसएम पंजाब की तरफ से भी मैं वेलकम कर देती हूँ आपको। यहाँ पे जब आएंगे आप, शायद आप पहले भी कई मेडिटेशन किए होंगे या कुछ और प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया होगा, पर यहाँ जब आप ये प्रोग्राम में एंटर होंगे या किसी मास्टर को सुनेंगे, क्योंकि रोज आप एक मास्टर को सुनेंगे, यू विल लिसन टू समबडी, तो एक ओपन माइंडेडनेस के साथ सुनिए, एक बिगिनर माइंडसेट के साथ, कि हमको जीरो बन के एक स्टूडेंट की तरह अगर आप सुनेंगे तो आप ज्यादा इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। अगर आप यहाँ सोच के ये आएंगे कि अरे हमको तो ये सब पता है, ये तो पता है, अगर ऐसा आप प्री प्री डिसाइडेड आएंगे, तो आप वो इंफॉर्मेशन जो आ रहा है वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फिल्टर्स आ चुके हैं। जो ऑलरेडी सुने हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे पीएसएसएम से जुड़े हैं, उनको भी यही है कि एक जीरो माइंडसेट के साथ जब भी हम एक क्लास में बैठेंगे तो हमेशा जीरो माइंडसेट। तब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप है, इतना हाई वाइब्रेशनल ग्रुप। क्यों हाई वाइब्रेशन? क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपना एवोल्यूशन, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, अपना पर्पस, अपना एक पैशन ढूंढने के लिए या समझने के लिए आए हैं। और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है बहुत ही हाई इंफॉर्मेशन है। तो इस ग्रुप कॉन्शियसनेस में एक जुड़ने के लिए आपको जीरो बनना पड़ेगा पहले। अगर आप सोच के आएंगे कि मैं कोई तो हूं, मैं स्पीकर हूं, या मैंने 10 साल मेडिटेशन किया या 20 साल ये किया या 10 दिन ये किया, तो कुछ नहीं होगा। तो ये एक पहला टिप है, ओपन माइंडेडनेस, बी ओपन रिसीव करने के लिए।
जो अंदर जाएगा वो जाएगा, जो रेजोनेट नहीं करेगा इट्स ओके, पर एटलीस्ट बी ओपन। वो है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का एक एक ट्रेट है, एक फीचर है कि ओपन माइंडेड हो। साइंटिस्ट बनना है मतलब ओपन माइंडेड रहना है, एक्सपेरिमेंट करना है मतलब ओपन माइंडेड रहना है। अगर आप यही सही है, यही मुझे पता है, ऐसा आप डिसाइड करके आएंगे तो आप साइंटिस्ट नहीं हो। पीएसएसएम में हम साइंटिस्ट बनाते हैं, मतलब आप एक्सपेरिमेंट करो। आप मेरी और जैसी मैम की बात मत सुनिए, आप एक्सपेरिमेंट करो और एक्सपेरिमेंट करके आप वो एक्सपीरियंस करो और फिर हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना हम आपके साथ शेयर करेंगे उतना हम आपसे भी सीखेंगे आपके एक्सपीरियंस के थ्रू। तो दो चीज डेफिनेटली, एक्सपीरियंस शेयर करना है और क्वेश्चन पूछना है। जैसी मैम को परेशान कर दो आप कि क्वेश्चन पूछ पूछ के कि ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है। पूछिए, यही है वक्त क्वेश्चन पूछने का। यहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स हैं, बहुत सारे पिरामिड मास्टर्स। और यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे ना कोई गुरु है, ना शिष्य है, ना फॉलोअर है। नो फॉलोअर्स हियर, ओनली मास्टर्स। यहाँ पे हम सब मास्टर्स हैं, हर कोई भगवान है। पर उस कॉन्शियसनेस को समझने के लिए ध्यान, आना पाना सती एक मार्ग है, एक डायरेक्ट हाईवे है। बस इसको आप पकड़ लेंगे तो और किसी की जरूरत नहीं है। आना पाना सती, आना मतलब इन ब्रेथ, अपाना एक्सेल, सती एक होना। अपने आती जाती श्वास के साथ एक होना ही ध्यान है। ना कोई मंत्र, ना कोई जप, ना कोई भगवान, ना कोई विजुअलाइजेशन। म्यूजिक हो या ना हो, कभी कभी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से म्यूजिक बंद हो जाएगा तो आप आंखें खोल के चैट मत करो, मैडम म्यूजिक बंद हो गया। बस आप ध्यान करते रहो, म्यूजिक आए ना आए, चैट में ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे क्या हो रहा है उस पे ध्यान देना है। क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, इसीलिए मैं बता रही हूँ। साइलेंस हो, म्यूजिक नहीं हो, जो भी हो, आप बस ध्यान ध्यान करना है। आंखें नहीं खोलना है, रूल नंबर 1, आंखें नहीं खोलना है। जब आप ध्यान करेंगे, कैसे ध्यान करेंगे एक बार फिर से दिखाऊंगी नए लोगों के लिए। हाथ को ऐसे क्लैस्प करना है। क्यों क्लैस्प करना है? क्योंकि हाथों फिंगर से 10% एनर्जी जाता है। ये साइंटिफिक लॉ है, जहां पे भी एडजस्ट होते हैं उसमें से एनर्जी जाता है। तो हाथों को ऐसे करना है और पैरों को क्रॉस करना है। अगर आप काउच पे बैठेंगे, चेयर पे बैठेंगे भी, एक पैर के ऊपर एक पैर डालना है। तो 10% जो टोस से जाता है उसको हम क्रॉस कर रहे हैं, तो एक एनर्जी सर्किट क्रिएट होता है। तो जो हमारा पहला पहला टास्क है कि हमारा जो अंदर का एनर्जी है वो हम कंजर्व करें। तो आंखें बंद करने से 80% एनर्जी कंजर्व होता है। 80%, 10% और टोस 10%, 100%। चश्मे है तो चश्मे निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमको लाइट, कुछ सुखासन में बैठना है। मतलब कोई मुश्किल आसन नहीं, कोई अनकंफर्टेबल नहीं, डिस्कंफर्ट नहीं। आपको बैक रेस्ट लेना है तो बैक रेस्ट ले सकते हैं। बिल्कुल कंफर्टेबल होना है, पर लेट के नहीं करना है, बैठ के ही करना है, क्योंकि फिर सो जाएंगे। तो इसीलिए बैठ के आराम से एक जगह आप चूज कीजिए। एवरी डे, अभी 40 दिन तक आपके कैलेंडर में मार्क करना है कि ये ध्यान का समय है, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और सुबह, आपका तो सुबह है 5:30 बजे, उठ के ही फोन मत चेक कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज मत चेक कीजिए। सब वेट कर सकता है, सारे मैसेजेस वेट कर सकता है। अगर कोई ऑफिस जाना है तो ईमेल्स मत चेक करिए।
पहले ध्यान कीजिए, क्योंकि आप ये सब अगर आप वो व्हाट्सएप या मैसेजेस या ईमेल देखेंगे तो अपना ब्रेन जो है एक्टिव हो जाएगा, क्या ये करना है वो करना है, और ध्यान में नहीं बैठेंगे आप। कब कब हो जाएगा, उठने की जल्दी होगी आपको। तो आपके लिए ये एक सेल्फ लव है। अपने आप के लिए आप 1 घंटा 40 दिन के लिए नहीं दे सकते हैं आप, सिर्फ 1 आवर ध्यान कीजिए, अच्छा इंफॉर्मेशन लीजिए और फिर अपने कामों में लगिए। फोन पे देखना हो या यूट्यूब में देखना हो, जो भी करना हो आपको, ये एक प्रैक्टिस है। 21 डेज जब हम कुछ भी करते हैं तो एक हैबिट को ब्रेक करते हैं। जब हम 40 दिन वही करते हैं तो एक दूसरा एक नया हैबिट हम क्रिएट करते हैं। हैबिट्स बहुत मुश्किल है ब्रेक करने के लिए या इंस्टॉल करने के लिए। इसीलिए 40 दिन का ये प्रोग्राम बनाया गया है PSSM में। अगर आप 40 दिन ये प्रोग्राम में रहेंगे, रोज सैटरडे पार्टी होगा, गैदरिंग होगी, सोशल फैमिली गैदरिंग होगी, सब कुछ होगा, पर फिर भी अगर आप ये एक कमिटमेंट अपने आप से कर सकते हैं, ये आप किसी के लिए नहीं कर रहे, आप अपने आप के लिए कर रहे हैं। ये वो हर चीज, वो आपकी विल पावर बढ़ाने के लिए, हर चीज जो आपने सोचा है कि काश मैं कर सकता हूँ, काश मैं कर सकती हूँ, उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये आपके पास एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आया है। इसको आप 40 दिन, ये सारे जो मास्टर से 40 दिन आएंगे आपके लिए आएंगे वो, तो आपको भी अपने आप के लिए आना है, किसी के लिए नहीं। तो 40 डेज कमिटमेंट के साथ सबको बता दीजिए कि अगर कोई गैदरिंग है, गेट टुगेदर है, रात को 2 बजे सोए फिर भी 5 बजे उठ के आ सकते हो आप, क्यों नहीं आ सकते? आधा घंटा ध्यान इज इक्वल टू 3 आवर्स, 3 घंटा स्लीप। हाफ एन आवर ध्यान इज इक्वल टू 3 आवर्स ऑफ स्लीप। जब आप ध्यान करेंगे कि नींद की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसा सोचते कि नींद बहुत जरूरी है, अरे सोया नहीं, वो आपका दिमाग बोल रहा है, माइंड ओवर मैटर। सो नो एक्सक्यूजेस, क्योंकि 40 दिन के बाद मैं आके आपको क्विज करूंगी, क्वेश्चंस पूछूंगी कि आपने क्या सीखा है इस 40 दिन में। और 40 डेज में आप पिरामिड मास्टर बनेंगे और आप बहुत सारे लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। आप एक बहुत ही अद्भुत मिराकुलस लाइफ में एंटर होने वाले हैं। चैप्टर इज ओपनिंग सभी के लिए, अ न्यू चैप्टर फॉर पंजाब, इस ध्यान के साथ, इस मास्टर बनो के साथ। सो थैंक यू वेरी मच जैसी मैम कि थैंक यू मुझे परी जी। सबसे मिलाने के लिए फिर से थैंक यू। थैंक यू परी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अद्भुत मैसेज के लिए और अपना समय देने के लिए। और मैंने पहले पंजाबी में बोला, मैं हिंदी में बताऊं कि जितने भी मास्टर्स यहाँ पर सेशंस लेंगे वो सभी वो मास्टर्स हैं जिन्होंने 1 डेढ़ साल से, जब से पहला हमने प्रोग्राम किया, वो मिलकर इस जूम को चला रहे हैं। मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, मैं तो गेस्ट स्पीकर की तरह कभी कभी जब बुलाते हैं तो आती हूँ, खुद अपनी जिम्मेदारी निभाकर। इस जूम को उन्होंने बंद होने ही नहीं दिया जब से शुरू हुआ है। और जब मैंने मास्टर बनो की बात की, इन सबसे कहा कि, इन्होंने भी कहा कि मैडम दोबारा से एक प्रोग्राम करो, तो मैंने कहा कि आप ही डिसाइड करो, टॉपिक डिसाइड करो, स्पीकर डिसाइड करो, आप ही डिसाइड करो कैसे करना है। और बल्कि मुझे भी बताओ कि मुझे किस दिन आना है और कौन से टॉपिक पे बात करना है। एंड आई वाज अमेज्ड कि 5 लोगों ने मिलकर ये प्रोग्राम तैयार किया और मुझे सिर्फ 2 दिन दिए कि उस दिन आपको आना है, बाकी हम सब खुद करेंगे। कौन तो है 5 लोग? तो सभी सभी जो हैं जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम तैयार किया है और जो हैंडल कर रहे हैं जूम, तो सभी एक बार स्क्रीन पर आए और परी जी से मिले। और मुझे इस बात की इतनी खुशी हुई कि मुझे लग रहा था कि मास्टर्स को बुलाना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा आपने ये टॉपिक लेना है, आपने ये टॉपिक लेना है। सो दे हैव डिसाइडेड कि हम ये टॉपिक लेंगे। वाओ,
तो सभी नए मास्टर जो तैयार हुए हैं इस जूम सेशन के माध्यम से, वो खुद सामने आ रहे हैं और वो खुद उन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो ये एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ है, जो जैसे कहते हैं ना डेमोक्रेसी में, फॉर द पीपल बाय द पीपल, वही ये मास्टर बनम में हो गया है कि खुद ही सब तैयार होके खुद ही आ रहे हैं और खुद की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर रहे हैं। सरबजीत मैडम, स्क्रीन पे आइए, सबको स्पॉटलाइट करते जाइए। सरबजीत मैडम, सिमरन, सिमरन, गगनदीप, हाँ जी मैम जी। गगनदीप, हाँ जी मैम जी। गुड मॉर्निंग आराधना मैम जी, जी। आराधना जी, नमस्ते नमस्ते। सुखविंदर जी, नमस्ते मैम। सुखबीर जी, लवली जी, ये तो आपके कनाडा वाले प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट हैं। बिल्कुल। हाँ जी, नमस्ते मैम जी, कैसे हो? नमस्कार। मोस्ट वेलकम आपका। मैं सुखबीर, याद आया हम ब्रैम्पटन में मिले थे। हाँ हाँ, याद आया, बिल्कुल। अब फिर मिल रहे हैं 27 तारीख को, 27 को मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल 27, मैं वही बोलने वाली थी कि आप कनाडा मास्टर्स को भी इन्वॉल्व कीजिए, तो अच्छा है, मैम आ गई। वंडरफुल। ये मैंने आराधना सभी जी, ग्रुप में वो फ्लायर कर दिया है, सभी ग्रुप में मैंने फ्लायर भेज दिया है अपना, कनाडा वाला। गुड गुड, वेरी गुड। ये रिंकल जी ऑस्ट्रेलिया से हैं। ये बहुत ही शिद्दत से पत्री सर के कॉन्सेप्ट सुन के फिर उन्हें शेयर करते हैं और मैं यही ध्यान करते हैं और करवाते हैं। ये सब मिलके ही ग्रुप चला रहे हैं। वंडरफुल वंडरफुल। और अगर मैं किसी का नाम भूल गई हूँ तो प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सो मेरा तो पूरा कंफर्टेबली आई एम एंजॉयिंग, दे आर डूइंग द वर्क। वंडरफुल, बस ऐसा ही होना चाहिए। एवरीबडी मस्ट टेक अप अ जूम और करना है बस। ये एक सिंगापुर के मास्टर हैं, सुरजीत सिंह जी, और शायद वो अभी कुछ दिन से बिजनेस मीटिंग्स के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। सो ये उन्होंने हमें ऑफर किया कि मेरा जूम है ऑलरेडी, तो आपको नया जूम लेने की, पे करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे जूम को यूज कीजिए। और अपने आप ही सारे काम होते चले गए। वो भी ज्वाइन करते हैं और वो भी कोरोना टाइम से ही जुड़े हैं, बट उनका कुछ बिजनेस मीटिंग्स चलता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो वो भी रेगुलरली ज्वाइन करते हैं इस ग्रुप को और वो भी जूम हैंडल करते हैं जब ट्रैवल नहीं कर रहे होते तो। सो जो सर का एक नारा था कि बी अ मास्टर, सो दी, ये सब मास्टर बन चुके हैं जो, और दूसरों को मास्टर बनाने के रास्ते पर हैं। वंडरफुल वंडरफुल। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये सब मास्टर्स को मिलके। वंडरफुल। और सारे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर सभी मिलके कर रहे हैं, सो इट्स वंडरफुल, ब्यूटीफुल। हाँ जी, सुरजीत जी भी आ गए। यस यस, वंडरफुल ये मास्टर। सिंगापुर से हैं। पर सत श्री अकाल जी। बहुत प्यार देता, बहुत प्यार दिया इस पूरे ग्रुप ने। परिपत्री मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच के ऊपर। आपकी आपका जो संदेश आपने अभी दिया, सारे ही ग्रुप को दिया, बहुत ही बहुमूल्य। और इस ग्रुप में आई थिंक सही कहा मैडम जसी मैम ने, सारे ही मास्टर्स बन चुके हैं और बड़े ही टाइम से हम ये सारा ग्रुप जो जुड़ा हुआ है उसके अंदर जो एक कड़ी है प्यार की, ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बिना बिना ग्रुप ज्वाइन किए ऐसे लगता है जैसे कुछ रह गया आज के दिन में। बट इन सब में थोड़ा सा मैं अनलक्की हूँ बिकॉज ऑफ माय वर्क शेड्यूल। तो पिछले कुछ टाइम से मैं रेगुलरली ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई थिंक मे बी अनदर 1 to 2 more months, तो उसके बाद फिर से रेगुलर ज्वाइन हो जाऊंगा। तो ये हमारे लिए एक ऐसा है जैसे डेली का खाना होता है, उस तरह से हमारे लिए ये जो हम डेली की हम ध्यान करते हैं, आनापानसति ध्यान, ये खाने की तरह है। बट खाना अगर नहीं खाए तो चलेगा, ध्यान नहीं करा तो नहीं चलेगा। तो ऐसा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप और हम
शुक्राना करते हैं हमारे पत्री जी का, जिन्होंने हमें इस मार्ग पे चलाया। और जसी मैम का बहुत बहुत शुक्राना है मेरे जीवन में। इनकी वजह से मैं पत्री जी को जाके बेंगलोर में मिला था और उनके दर्शन किए थे। और वो आई थिंक उनके लास्ट कुछ महीने पहले का था। तो ये जो हमें जो गिफ्ट मिला है, ये गिफ्ट है एक अनमोल गिफ्ट है, जो बिना आई थिंक कर्मों के नहीं मिलता। तो वी हैव ए वंडरफुल कर्म्स, जिनकी वजह से हम इस ग्रुप में और इस ध्यान में जुड़े हैं। एंड द अमाउंट ऑफ पीस वी आर गेटिंग फ्रॉम ऑल दिस पार्टिसिपेंट्स, इनकी एनर्जी बहुत हाई है। मैम, बहुत हाई एनर्जी है। अगर मैं कुछ लोगों का नाम लूं तो दे आर टू मच डेडिकेटेड। गगन मैम है, सरबजीत मैम है, सिमरन है, आराधना जी हैं। देयर डेडिकेशन इज एट अ वेरी हाई लेवल। So thankful to all my family. So this is actually our family. Without our family, we got no meanings. Thank you, thank you. Thanks a lot to everybody. थैंक यू। हाँ जी सिमरन जी। परी जी, आपने बहुत बढ़िया किया जो आपने कहा कि 40 डेज, क्योंकि ना मैंने इनको 40 डेज बोला तो ये सब कह रहे थे मैडम 40 डेज के लिए कैसे करेंगे कैसे करेंगे, हम ना 21 डेज करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है 21 डेज करो, और आपने 40 डेज का इम्पोर्टेंस बता दिया, इनको मोटिवेट कर दिया कि इसको 40 डेज तक इसको चलाना है अब इनको। सो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, और वो जिस चीज से ये लोग बच रहे थे कि 40 डेज पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो यू हैव गिवन द राइट क्लू कि 40 डेज एक हैबिट को बनाने में और छोड़ने में लगते हैं। सो मेरे ख्याल से अब इनको समझ आ गई होगी 40 डेज का इम्पोर्टेंस। जिस चीज से बच रहे थे कि नहीं 21 दिन करेंगे, 40 डेज नहीं करेंगे, नाउ दे हैव टू प्लान फॉर 40 डेज। Yes. Hello, hello, Simran. Namaste, ma'am. Hi. Hello. Yes, yes. मैम I'm blessed to talk to you to the second time. जैसे मैम मैं पहले हो गई, मैंने कल भी एक बार बात कर ली थी मैम से। ओके। बट यस मैम, बहुत बहुत वंडरफुल चेंजेस आए हैं PSSM को ज्वाइन करने के बाद, ध्यान को ज्वाइन करने के बाद। यहाँ मिल रही जो विजडम है उसको समझने के बाद एक हायर पर्सपेक्टिव मिला है लाइफ की तरफ। टोटली 360 डिग्री चेंज आया है लाइफ में। बॉडी हील हुई है, माइंड हील हुआ है, रिलेशनशिप हील हुए हैं। तो इट हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस जर्नी, 8 मंथ्स की जर्नी। एंड अब थोड़ा सा लगता है, रिग्रेट होता है कि पहले कहाँ थे, जो पहले नहीं मिल पाया, ये मेडिटेशन नहीं मिल पाया, विजडम नहीं मिल पाया। बट ठीक है, एवरीथिंग हैपन्स एट अ राइट टाइम इन अ राइट प्लेस। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू PSSM, टू आनापानासती मेडिटेशन, सहज ध्यान जिसे हम कहते हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पत्री सर, जिन्होंने अपनी लाइफ को सर्विस में डाल के हम सबकी लाइफ को एक मिराकुलस लाइफ बनाने की कोशिश की है। एंड वो सक्सेसफुल भी है और हमारी लाइफ मिराकुलस बन रही है। सो थैंक्स अ लॉट टू PSSM एंड पत्री सर। थैंक यू सिमरन जी, थैंक यू। आराधना जी, आप फ्रंट पे आइए। परी मैम, पत्री जी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेशन हुए, लेकिन वो कहीं बुक्स में ही रह गए। जो बहुत सारे सर कॉन्सेप्ट्स बताते थे। तो चंडीगढ़ में पहले जो संतोष कालरा मैडम प्रिंसिपल थी, उन्होंने रेवती मैडम के साथ मिलके बहुत ट्रांसलेशन किया था। लेकिन क्योंकि अब उनका हेल्थ और एज हो गया है तो वो अब काम नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए सर ने PTJ जो मैगजीन है वो भी दिल्ली में दे दिया था। तो वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं पत्री सर के, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम पढ़ नहीं सकते, आईसेट वीक है, बुजुर्ग हैं, तो वो हम तक वो चीजें नहीं पहुंचती हैं। तो वॉलेंट्री आराधना मैडम ने कहा कि मैं इनको वॉइस ओवर करने की सर्विस करूंगी। तो इन्होंने वो सारे जो पत्री जी के कॉन्सेप्ट इकट्ठे किए, और ये एक एक कॉन्सेप्ट को वॉइस ओवर करती हैं। और जो पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन में पत्री जी के बारे में बताया जाता है, जो ध्यान महाचक्र के मैसेज होते हैं, जैसे इस बार आपका मैडम का परिणीता का मैसेज था जो, तो वो सारा जो ट्रांसलेशन है वो इसको ये आराधना जी वॉइस ओवर करती हैं, फिर इसको ग्रुप्स में शेयर करती हैं ताकि ये विजडम सब तक पहुंचे। और ये बहुत ही, इनको मेरे ख्याल से ग्रुप में सबसे कम समय ही नहीं हुआ है,
लेकिन इन्होंने इतना डेडिकेशन से पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, और ये लोगों के एक्सपीरियंसेस भी रिकॉर्ड करती हैं इसके बीच में टाइम निकाल के। तो वो एक्सपीरियंसेस फिर हम सबके साथ ग्रुप्स में शेयर करते हैं, उन नए लोगों के एक्सपीरियंस जो सर से मिले भी नहीं, और ध्यान ने कैसे उनका लाइफ चेंज किया। तो उसका एक हमने सेगमेंट बनाया है, जीवन के रंग पत्री जी के संग। तो उसके लिए ये सभी नए मास्टर्स के एक्सपीरियंस जो हैं उनको रिकॉर्ड करती हैं और फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करती हैं। उस लेवल पे जितना हमारा है रेंज, उसमें हम जो भी हमें आइडियाज आते हैं उसे एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने सोचा इन्हें भी आपसे मिलवाऊं। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। नमस्ते पत्री मैम। और बस यही उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें, बहुत कुछ सीखने को मिले, थैंक्स टू PSSM। और बस और जितना हो पाएगा उतना हम करेंगे, और ये सब ध्यान का ही कमाल है जो हम लोग इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो थैंक्स टू एवरीवन। थैंक यू, वंडरफुल। थैंक यू। कोई भी मास्टर इसमें से अगर जिस दिन भी उनको इच्छा हो मेडिटेशन कराना चाहता है तो एडमिन जो है उनको मैसेज करिए। कोई भी करा सकता है, ऐसा नहीं है कि नया है तो नहीं करा सकता है, एवरीबॉडी कैन सर्व। तो इसमें कोई इतना टेक्निकल नहीं है, हर एक सीख के ध्यान करा सकता है, कोई टॉपिक शेयर कर सकता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और इसी तरह हम इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। और सभी का इस पिरामिड परिवार में बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे साथ जुड़े हैं, और परिपत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और हमें गाइड किया और मोटिवेट किया कि 21 नहीं 40 डेज करो। थैंक यू, थैंक यू परी जी। यस यस, थैंक यू मैम, एंड थैंक यू सभी ऑर्गेनाइजर्स के लिए जो ये इनिशिएटिव लिया है और आगे आए हैं कि हम करेंगे। इट्स जो पार्टिसिपेंट्स है वो तो सीखेंगे ही, पर इवन स्पीकर्स ये 40 डेज में बहुत ज्यादा हम भी सीखते हैं। इसीलिए मुझे भी ये 21 डे या 40 डे प्रोग्राम में आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट को प्रेजेंट करना है मतलब हमको पहले उसको समझना है, उसके बाद हम सिखाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है सारे स्पीकर्स के लिए भी, कि हम उस सब्जेक्ट को समझे और तरीके से। जब भी हम एक चीज को एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो और समझ में आए, क्योंकि हमारी और थोड़े फ्रीक्वेंसी हमारा थोड़ा बढ़ गया तो और इंफॉर्मेशन आएगा। तो इस तरह हम हर बार कुछ और नया सीखते हैं, हर बार हम कुछ और बेहतर स्पीकर और बेहतर मास्टर बन जाते हैं। सो वंडरफुल। एंड आई सी विभा मैम हियर। मैम नमस्ते। Oops. यस, क्या हो वंडरफुल। रहा है, क्या हो रहा है दिल्ली में? दिल्ली में एकदम मजेदार, बहुत बढ़िया। अभी हमने एक वेजिटेरियन रैली भी निकाली। वाह, आई नो, मैंने देखा है पिक्चर्स। हाँ, बहुत यस, बढ़िया। बहुत बढ़िया। और मैम जो प्रिंसिपल आई थी एक बार, वो पत्री मैम जब आई हुई थी ना, तब वो प्रिंसिपल आई थी, और उनका जो है इस एरिया के 500 स्कूल से उनकी अप्रोच है। अच्छा। तो 500 स्कूल्स अगर वेजिटेरियन हो जाएंगे, वो ध्यान में आ जाएंगे, तो देखिए कि वो जो महेश इफेक्ट है ना, वो हमारी दिल्ली में भी आ जाएगा। महर्षि महेश योगी इफेक्ट। हाँ, महेश योगी इफेक्ट। यस तो यस यस। और मैम वो जो प्रिंसिपल हैं, वो अपने बच्चों को पिरामिड्स बनाना सिखाती है, और वो सब ना पिरामिड कैप्स पहनकर पढ़ाई करते हैं, छोटे छोटे पिरामिड्स बना लेती हैं। वाह, तो यहाँ तो एकदम गाड़ी जबरदस्त चल रही है। बढ़िया बढ़िया, बस यही सुनना था मुझे। यस। और हम और लोग ना, हाँ बोलिए बोलिए, जैसी बोलिए। जितने भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए हैं, जो भी स्पीकर्स हैं, वो इनसे प्रेरणा लें और अपने अपने एरिया में इस तरह का एक विजन रखें कि हम भी ये करेंगे। हम तैयार हैं, हम करके दिखाएंगे। करना यस, ही है, हमारा मोटो ही है, नशा मुक्त पंजाब। करना ही है ये, हमको ही करना है, और किसी कोई आके नहीं करेगा।
ये हमको ही करना है, हमारा घर हमको ही साफ करना है, कोई Yes. आएगा नहीं साफ करने। तो पहले हमारे घर से शुरू करेंगे ये मूवमेंट, ये एक मूवमेंट है। Yes. चाहे आप कनाडा में हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, साफ करना घर से शुरू होना है। इसीलिए पंजाब नेक्स्ट 5 years गोल, इन 5 years पंजाब कंप्लीट नशा मुक्त, कंप्लीट। Yes. हरमिंदर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप पहले भी मिले हैं अनुथाना पिरामिड में परीज से। एक बहुत बड़ा पिरामिड आना है, आएगा पंजाब में। यस। जी जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ जी। सत श्री अकाल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू जस्सी मैम, थैंक यू जी। बहुत ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਸਮਝ ਆਈ। ਚਲੋ 50 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੱਤਰੀ ਸਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਪੱਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਜਲ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू परी जी और थैंक यू, सभी पार्टिसिपेंट्स का सबका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नए विज्ञान के साथ, नए ध्यान के साथ, नए ज्ञान के साथ हर दिन आगे बढ़ते जाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय से ज्वाइन कीजिए और अपने आप को अपडेट और अपग्रेड कीजिए, जो आज के समय की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सत श्री अकाल। व्यस्त रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ध्यान करो, ध्यान कराओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।